everyone. तो आज की क्लास शुरू करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. एंड इन लास्ट सेक्शन, in last class we have been dealing with the rights. We left here actually rights of outgoing partners. I discussed but there was a problem. I remember कि वहां पर कुछ म्यूट हो गया था, इस वजह से वो क्लास टॉपिक अधूरा रह गया था. So today I will complete this topic, rights of the outgoing partner. Rights of the outgoing partner. And this topic may be this section, specifically section 36 and also section 37. These two sections can be relevant for your mains as well. You can expect prelims question from these sections, and you can also expect the mains questions from the section 36 and 37. So these two sections are important for your mains. And now please go to the Barak language. A little bit technical. और जब मैं टेक्निकल कहता हूं तो if you are going to appear in Haryana, Delhi and in Punjab, then you should be more conscious about that. So please go to the board and read the Barak language. This is section 36. Right of the outgoing partners to carry on the business. And you also try to understand the two things, that basically when we talk about the rights of an outgoing partner, then you will see you can divide it into two categories. Number one category is related to 36 and second is related to 37. What is this? Right to carry on. First category is what? Right to carry on the competing business and right to share subsequent profits until amount due him has been paid. क्या मतलब है इस बात का? When I talk about when we say what are the rights of the outgoing partner, तो in that case number one can be कि अगर कोई पार्टनर वापस जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, he may be retiring himself, he may be expelled, he may be insolvent, now cease to partner, तो क्या उसके पास कॉम्पिटिंग बिजनेस का राइट होगा या नहीं होगा? वो क्या करेगा? व्हाट ही कैन डू फॉर हिज ओन लाइवलीहुड. तो वेदर ही कैन कैरी ऑन ए बिजनेस ऑफ द सिमिलर नेचर, ऑफ द सेम टाइप, दैट मीन्स व्हाट? कॉम्पिटिंग बिजनेस. एक तो ये राइट हुआ कि वो क्या कोई बिजनेस कर पाएगा, वैसा ही बिजनेस जैसा कि वो कर रहा था पार्टनर्स के साथ, क्योंकि उसके पास उसका एक्सपीरियंस है. सेकेंडली कि इन सर्टेन कंडीशन, सपोज उसका वो ही हैज सीज टू बी पार्टनर, वो पार्टनर नहीं रहा, अब पार्टनर है ही नहीं वो, ही हैज बीन एक्सपेल्ड और ही हैज रिटायर्ड हिमसेल्फ. एनीवेज, जो हम लोग आउटगोइंग पार्टनर से पढ़ चुके हैं, है ना. अब वो पार्टनर नहीं है, तो लेकिन उसका शेयर नहीं दिया गया. उसका जो शेयर बनता था, वॉट एवर ही शुड हैव बीन पेड, दैट शेयर रिमेन्स अनपेड. अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हुई है. तो इन दैट केस क्या उसके पास सब्सिक्वेंट शेयर जो आप बिजनेस में कमा रहे हैं, मीनिंग देयर बाई, सपोज कीजिए उसका 2 लाख रुपीज आपके पास रह गए एज ए पार्टनरशिप फर्म, and now he is no more partner and you are utilizing that 2 lakh rupees in your business, तो whether he has any right to share the profits in your business or not. आपने जो बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया उसका भी शेयर यूज किया, तो whether he is entitled for that or not. So that will be taken care by the section 37. 36 deals with the competing business, right of the competing business, and second is what? 37 is what? राइट टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स. तो ये दो राइट है मेनली. इन राइट्स में व्हाट आर द राइट्स, व्हाट आर देयर लिमिटेशंस, व्हेन दे कैन बी अवेल्ड, यही सारी 2-3 बातें टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इन पर आपको ध्यान में रखना होगा. एंड क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट डाउन द क्वेश्चन फॉर योर मेंस. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड? प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. दिस इज योर मेंस क्वेश्चन. प्लीज सी द बोर्ड. दिस इज in what ways a partner can cease to be a partner. कितने तरीकों से पार्टनर नहीं रहेगा? नंबर 1. सेकेंडली, व्हाट
are the rights of outgoing partner. So these are the two questions which can be joined together, and this can be a mains question. Direct question can be there. Fine. तो इन ये हम लोग कर चुके. In what ways? It is all about done now. Now we are going to discuss with this rights of outgoing partners. This is rights of outgoing partners, and this is first right to carry on the competing business. In that regard we will have to study section 36. तो सेक्शन 36 को हम लोगों ने बहुत ढंग से पढ़ना है. अभी ये टेक्निकल है आपका, पढ़िए जरा क्या कहता है. प्लीज सी द बोर्ड. सेक्शन 36. An outgoing partner. Who is this partner? Outgoing partner. This is an outgoing partner. What is his right? He may carry on a business. And what kind of business he can carry? Competing with that of the firm. तो प्लीज सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पार्टनर है, देखिए इफ यू आर ए पार्टनर, अगर आप पार्टनर हैं एंड नाउ यू हैव सीज टू बी ए पार्टनर, देन यू कैन रन एनी बिजनेस. फर्म कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू इट. सपोज firm was dealing with the medical business in the medical, you see, मेडिसिन का बिजनेस है उनका, टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है. सो नो आप पार्टनर थे उस फर्म में, नो यू आर नो मोर पार्टनर. आप गारमेंट्स बिजनेस में जा रहे हैं, आप किसी अदर बिजनेस में जा रहे हैं, तो वहां तो बात ही खत्म होगी. देयर इज नो लीगल फेटर्स देयर, यू कैन नॉट कंटिन्यू दोज. उसकी तो बात ही नहीं है. कहां क्वेश्चन आएगा? व्हेन यू विल स्टार्ट द सिमिलर बिजनेस, यू कैन से ना कॉम्पिटिंग बिजनेस विद द फर्म. आप वही बिजनेस कर रहे हैं जो फर्म का बिजनेस है. In that case, firm can object it. What are you doing, man? आप कर क्या रहे हैं ये? तो you know everything about our business. Now you are starting competing business with us. It means you want to cause us losses because you know the secrets of our business. सभी कुछ. तो जहां भी objection होगा वो यहीं पर होगा. But section 36 gives you the right that if you are an outgoing partner, you may carry on the business, and that business may be the competing with that of the firm. No doubt from that. Not only this, you may advertise such business as well. So there are two rights now. You can carry on the business. Secondly, you may advertise such business. And business is what? Business is what? That is what? Competing with that of the firm. यहां पर कोई बात नहीं है. Next question is whether this right is absolute. You see the language what I am saying. Whether the right to carry on the business of competing nature and advertising it is an absolute right or not, or whether it is subject to certain limitations. Whether it is subject to certain limitations or not. And then you will have to read the subsequent part. So this right is not absolute. Absolute right का मतलब होता है कि there are no conditions at all. कोई condition है नहीं. This is absolutely he can carry on the business without any limit, without any limitation, without subjecting to any limitations. But in this case, section 36, you will see there are certain limitations. It means right given by the 36 is not absolute right. Please see the board. This is, but subject to the contract to the contrary. इसको हम बाद में पढ़ेंगे इस लाइन को. He may not number 1a use the firm name, b represent himself as carrying on the business of the firm, and third solicit the customs of persons who were dealing with the firm before he ceased to be partner. So these are the A, B and C. These are three basically restrictions. These are three restrictions subject to which you have the right to carry on the competing business and also to advertise the same. What are those? Number 1, you cannot use the firm name.
It means what? It means what? You cannot say that suppose the name of the firm is what? Bikaner Sweets. You are a partner in the Bikaner Sweets. Now you want to run the similar kind of business. It means what? Dealing in the sweets. Okay. But you cannot use the firm name now. आपको ये लिमिटेशन रहेगी आपके कि यू कैन नॉट यूज द फर्म नेम. सेकेंडली में सेम नाम अप्लाई नहीं कर सकते आप. सेमली क्या करेंगे? सिमिलरली यू कैन नॉट रिप्रेजेंट योर सेल्फ टू बी द पार्टनर. यू आर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म. इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन फिर भी एक बताना जरूरी है. थोड़ा सा हो सकता है 1% किसी को नहीं आ रहा हो उतना भी समझ में, उसके लिए समझिए. These were the partners. Now D has ceased to be a partner, so we are saying him outgoing partner. Now he is the outgoing partner. They were carrying on the business of Bikaner Sweets. The first restriction is that D can run the business of sweets, no doubt. He can run the same business, but not in the name of the Bikaner Sweets. ये उसको अलाउड नहीं होगा. ठीक, एक तो ये. सेकेंड जो बी है रेस्ट्रिक्शंस, he cannot say that I am carrying on. Please see the words, that he cannot represent himself. वो अपने को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता. कैसे? that he is carrying on the business of the firm. So because you are D as a person, he is carrying on his own business. Therefore he cannot say that he is running the old business. Though he is running of the similar nature, competing business कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि it means what? कि you are still the part of that. You cannot say so. You cannot represent yourself. और अगर आपने ऐसा किया तो you know it what will the consequence. Doctrine of holding out, section 28. You will have to think for the application of 28, because in that case you will become liable for the things. You cannot do that. So ध्यान रखना. थर्ड restriction is what? बहुत सिंपल सी बातें हैं एक्चुअली ये. इसमें टेक्निकल बात है एक थर्ड restriction में. You please see the words. You cannot solicit the persons who were dealing with the firm before he ceased to be a partner. He cannot approach the old customers to persuade them to be diverted towards his business. इसका मतलब ये हुआ, he cannot solicit the customers. ठीक, कि जो कस्टमर्स, मान लीजिए नवदीप डावला मैडम डेली वहां पर चार्ट पर जाती थी और डेली ये अपने जो बतासे होते हैं, वॉट एवर चार्ट वगैरह होती है, वो सब खा के आती थी वहां पर. ये अब शिवम को पता है कि नवदीप जैसी स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं मिलेगी हमें. ठीक है, अब इनको चाहिए कि गोलगप्पे मैडम हमारी दुकान पे खाना करके. तो यू कैन नॉट सॉलिसिट दोज कस्टमर्स विच हैव बीन डीलिंग विद दैट फर्म. लेकिन इसमें खास बात क्या है कि अगर वो ओल्ड कस्टमर्स नवदीप मैडम खुद अप्रोच कर रही हैं आपको, if she herself is coming to your shop, then there is no bar. So where is the bar? See, if the old customers of themselves prefer to come to him, there is no bar to his attending to them. Where is the bar? Please read the language. That he may not, सौरभ ध्यान से देखो, he may not solicit, उनको परसुएड नहीं कर सकते. तो वेयर इज द बार? बार इज ऑन परसुएशन ऑफ द ओल्ड कस्टमर्स. बार इज नॉट दैट यू विल नेवर अटेंड देम. ये बार नहीं है. इफ दे कम देमसेल्फ टू यू, यहां से एक टेक्निकल क्वेश्चन प्लेम्स का बनता है. प्लीज नोट डाउन कि यहां से पूछ सकते हैं कि इफ द ओल्ड कस्टमर्स आर देमसेल्फ कमिंग टू देम, वेदर ही कैन अटेंड देम और नॉट. The bar is only the persuasion. Bar is only on solicitation. ठीक, I believe कि 3 restrictions है, ये आपको समझ में आ गई अच्छी तरीके से. तो there are 3 restrictions. Come on. Number 1, use of the firm name. He may not use the firm name. He may not represent himself
carrying on the business of the firm and he cannot solicit the old customers of the firm. Please let me know these are the three restrictions. तो right and उनके restrictions. तो did you understand it or not? बात समझ में आया आपको? मुस्कान कटारिया, अनीता मैडम, come on, everyone, सुरुचि. बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल चीजें नहीं थी इसमें. अक्षिता, फाइन. Now come to the main line, but subject to the contrary, but subject to the contrary, but subject to the contract to the contrary. This is. अब इसका मतलब समझते हैं. These are the restrictions. These are three restrictions as per section 36. But again, these restrictions are subject to contract to the contrary. It means if you have agreed to the contrary, अगर ये जो व्यक्ति हैं A, D हैं, अगर ये D जो व्यक्ति हैं, if he enters into a contract, if he enters into a contract, जैसे for example, आप लोगों को सबको नहीं आइडिया होगा, एक नगीना में एक रसगुल्ले की दुकान है, बहुत फेमस है, नाम याद नहीं आ रहा, मोहनलाल ऐसे ही कुछ है. तो दादा लाई दुकान है, बहुत फेमस है. वहां पे जो रसगुल्ले बनते हैं थोड़ा अलग टेस्ट है, बहुत फेमस है. तो जो लोग भी हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, दे वुड लाइक टू टेक ए ब्रेक देयर, और वो 3-4 रसगुल्ले गपागप कर लेते हैं यहाँ पर. अब पहले पिताजी की थी, अब उनके 2-3 बेटे थे. अब ये समस्या आ सकती है उनके सामने कि भाई अब ये बिजनेस है, किस किस उसमें जाए. समझ रहे हैं बात? ये नेम सेम, क्योंकि नाम चल रहा है मोहनलाल. अब मोहनलाल नाम सबको चाहिए, जैसे सोहनलाल किया ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी. अब बड़ा बेटा भी कहेगा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं भी यही नाम यूज करूंगा, ये भी यूज करेगा. तो इस तरह की शायद कई बार चीजें हो जाती हैं. तो समटाइम्स दे मे एग्री, द पार्टनर्स मे एग्री टू द कॉन्ट्रेरी, कि those restrictions, the restrictions which are imposed by A, B, C shall not be applicable in our case. It means what? You may use the firm name as well, and you may solicit, even you are allowed to solicit the old. ठीक. बट इफ ही यहाँ पर ये थोड़ा हिच है, अगर वो रिप्रेजेंट करता है लोगों को कि वो बिजनेस के फर्म कर रहा है, देन ही इज इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ. कोई भी ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा. तो उसको जनरल सेंस में समझें कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, दीज आर सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. इट मींस दे कैन एग्री दैट आउटगोइंग पार्टनर, इन आर केस जो डी है, इन आर केस डी, ही कैन यूज द फर्म नेम एज वेल. They can agree that we have no problem even if you solicit the old customers, they can decide this. But in case of B, practically speaking, they will never agree, because there will be liability. फिर वो एक fraud case बन जाएगा automatically कि how can you represent something which is not existing in reality. जो चीज है ही नहीं, you are not the part of the firm, you cannot say so. तो बेसिकली ये ए और सी पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन आप लोगों को अगर मेंस में आ जाए तो जनरली लिखना कि the above mentioned 3 restrictions are subject to the contract to the contrary. It means the continuing partners and the outgoing partner, they may agree that these restrictions as mentioned above are not applicable upon them. For example, they may agree that they may use the firm name, the outgoing partner may be allowed to solicit the old customers as well, like this. तो इस तरीके से आप लिखना. तो ध्यान रखना, it is very valuable subject to the contract to the contrary, क्योंकि ये लाइन जनरली लगातार चलती ही रहती है एक थ्रेड की तरह से. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमेशा अपने बेयर एक्ट में उसको हाईलाइट करके रखो, और उस चीज को उसकी इंप्लीकेशन क्या है उसको भी समझो कि इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि 3 restrictions, these 3 restrictions are imposed by section 36, but these 3 restrictions can be done away by a simple contract between the outgoing partners and the
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो आई बिलीव कि आपको सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी का मीनिंग एंड एप्लीकेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कम ऑन वैशाली। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट। एक केस है, आपको भेजूंगा मैं, सेक्शन 306 है आईपीसी का। आप मुझे बताना अबैटमेंट टू सुसाइड बनता है या नहीं बनता। एक लेडी मर गई है, मतलब वाइफ ने एक लेटर छोड़ा है हस्बैंड के नाम पर, और उस पर फिर यह है कि वो बनता नहीं बनता, उससे सिलसिले में कॉल थी। हाँ साहब, कहाँ था मैं, बताएंगे ना आप मुझे। तीनों का था, क्या बोल रहा था मैं, प्लीज रिमाइंड मी अक्षिता फास्ट। ये हाँ तीनों का आगे कंटिन्यू करना था हम लोगों ने ना, हाँ बस ठीक है। देखिए ये सब तो हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, agreement in restraint of trade. Agreement in restraint of trade, again we have seen this in 11 as well, and please see this. a partner may make an agreement with his partners that on ceasing to be a partner he will not carry on any business similar to that of the firm. You please see, we have discussed it अर्लियर एज वेल, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। एक होता है रेस्ट्रिक्टिव एग्रीमेंट्स, है ना, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड प्रोफेशन एटसेट्रा, ठीक, ट्रेड इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ बिजनेस, कैरिंग ऑन बिजनेस एटसेट्रा। सो सेक्शन 27 है आपके, उसमें सेक्शन 27 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जिनको भी नहीं पढ़ा है पहले से वो समझ लीजिए, वो क्या, ये क्या कहता है। Section 27 Indian Contract Act says that if there is any agreement, what if there is an agreement, AG, there is an agreement which restricts on your right of carrying on the business, जो आपके किसी भी व्यापार करने के अधिकार पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना, उस एग्रीमेंट का क्या फेट होगा, दैट शैल बी वॉइड, वो शून्य होगा, दैट शैल बी वॉइड, द एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड शैल बी वॉइड। लेकिन ये जो 36 है, 36 क्लॉज 2, उसका एक्सेप्शन है, उसका अपवाद है। ये क्या कहता है कि पार्टनर और जो अदर पार्टनर्स हैं ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि व्हेन ही सीज टू बी पार्टनर, जब वो पार्टनर नहीं रहेगा, इट मींस व्हेन हिज कैटेगरी विल बी द ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर्स, जब वो आउटगोइंग पार्टनर कैटेगरी में आ जाएगा, देन ही विल नॉट कैरी ऑन द बिजनेस, ही विल नॉट कैरी ऑन, यू सी द बोर्ड, दिस इज, he will not carry on the business of similar nature. So you see, if you are agreeing, if you are entering into an agreement, if you are entering into an agreement which restricts the right to carry on the trade, it should be hit by section 27. 27 ऐसे ही एग्रीमेंट की बात करता है कि कोई एग्रीमेंट अगर ये कहता है कि he will not carry on any business, तो दैट शुड बी एज पर सेक्शन 27 वॉइड, वो वॉइड होगा। समझ रहे हैं बात, या पढ़ चुके हैं कई बार, जिन लोगों ने पार्टनरशिप हम करते ही बाद में, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पहले अच्छा पढ़ा होता है, तो फिर भी सेक्शन 27 ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड घोषित करता है। लेकिन 36 क्लॉज 2 ये कहता है कि ऐसा जो एग्रीमेंट होगा, दैट शैल बी valid if the restrictions imposed are reasonable. तो ये हुआ जनरल आइडिया, हम लोग इसको ढंग से डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार लैंग्वेज में। तो सेक्शन 27 ने जिसको मना किया, उसको परमिट किया 36 क्लॉज 2 ने। बेसिकली सेम एग्रीमेंट है, यू कैन सी अंडरस्टैंड लाइक दिस एज वेल। This is regarding the agreement in restraint of trade. This is section 27, वैशाली समझ में तो नहीं आ रहा, 27 ICA 36 clause 2 IPA Indian Partnership Act. Now
this same kind of agreement, it says it is void, but it says no, it is valid. It is valid. It is valid. समझे आप लोग? तो सेम एग्रीमेंट है. एग्रीमेंट का काइंड कौन सा है? एग्रीमेंट इज व्हाट? एग्रीमेंट इज इन द रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. इस तरीके के एग्रीमेंट को सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि इट शुड बी डिक्लेयर टू बी वॉइड. बट 36(2) कहता है कि नो नो नो, whatever is written notwithstanding anything contained in section 27, this agreement is valid. Now you read the language of section 36 now. Basically, okay, note this is 36 clause 2. 36 clause 2, this permits this. A partner may make an agreement. It means what? 36 clause 2 is permitting such kind of. You can, if you are a partner, you can enter into an agreement with other partners. It means what? Such kind of agreement is permissible. ऐसा possible है. कैसा agreement? That restrictive agreement that he will not carry on any business of similar to that of the firm. So this is, and again to for the more clarity, यहाँ permit कर दिया, लेकिन because आपको section 3 पढ़ना भी साथ साथ, इस for more clarity क्या कहा इन्होंने कि नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 27, कि 27 में मत जाना, 27 में कुछ भी लिखा हो, सच एग्रीमेंट शैल बी वैलिड. कंडीशंस क्या है फिर? द कंडीशंस इज ओनली दैट इफ सच रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल. जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं? क्या एग्रीमेंट था आपका? 36 ये कहता है कि दिस इज द एग्रीमेंट, ही विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस similar to that of the firm within a specified period, within a specified local limits. These are very important terms. So you can make an agreement which is restrictive in nature, but it is not restricting you absolutely. ध्यान रखना, it is very very important. It is not कि you can never start such a business. जो गोलगप्पे वाली दुकान चलानी थी, है ना, नवदीप मैडम तो कस्टमर बनाई गई थी, है ना, शिवम था. तो शिवम अगर पार्टनर है, नाउ ही इज एन आउटगोइंग पार्टनर, सो ही कैन नॉट बी रेस्ट्रेन टू कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस फॉर अनलिमिटेड पीरियड. कि पूरी जिंदगी तुम गोलगप्पे की दुकान नहीं चला सकते, ऐसा नहीं हो सकता. इट कैन बी. तो पहला राइट क्या है? देखो इसको समअप करो आप. आउटगोइंग पार्टनर हैज अ राइट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ सिमिलर नेचर, नो प्रॉब्लम. लेकिन आप ब्ला 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 ABCD ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी. फर्म का नेम यूज नहीं करोगे, ओल्ड कस्टमर को सॉलिसिट नहीं करोगे, रिप्रेजेंट नहीं करोगे. इन कंडीशंस के सब्जेक्टेड यू कैन कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यू कैन एग्री विद द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, yes, I will not carry on the business. It means what? You yourself are agreeing to waive that right with 36(1) gave you. 36 clause 1 ने जो आपको राइट दिया था, उसको आप वेव कर रहे हो थ्रू एन एग्रीमेंट कि नो, आई विल नॉट कैरी ऑन. बट इन दैट केस यू विल हैव टू टेक केयर दैट द रेस्ट्रिक्शन जो लगाया, आप ये कह सकते हो 3 साल के लिए नहीं करूंगा, 4 साल के लिए नहीं करूंगा, विद इन ए स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स नहीं करूंगा, ये तो पीरियड की, अब आप कहेंगे ताउम्र नहीं करूंगा, तो दैट इज नॉट रीजनेबल. रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं रहेगी. आप कहें लोकल लिमिट्स है ना, आप कहें गोलगप्पे की दुकान मैं मुखर्जी नगर में नहीं चलाऊंगा, इट इज रीजनेबल. आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में नहीं चलाऊंगा, आप कहो कि पूरी इंडिया में तुम गोलगप्पे की दुकान नहीं खोल सकते हो, तो ये लोकल लिमिट्स जो है. फिर ये जो सेकंड लाइन है, इफ द रेस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल, ये फिर वॉयलेट हो जाएगी. इन दैट केस दैट रेस्ट्रिक्शन विल बी वॉइड. जो रेस्ट्रिक्शन होगी वो वॉइड होगी, एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा. अब मैं इसको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा, तो मैं किसी को, आप लोगों को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि ताकि कुछ रहे ना. मैं पूछता ही नहीं आपको समझ में आया नहीं आया,
ये समझिए, दीज वर द पार्टनर्स A, B, C and D. These 4 persons as a partnership were carrying on the business of Bikaner Sweets. Now he is the outgoing partner. Partner. ठीक. Now he has right. We are talking about his rights. We are talking about the rights of D because he is the outgoing partner and he has the right to carry on business of similar nature. This is his right. Basically he has right to carry on the similar business. Now what are the restrictions? There are 3 restrictions A, B, C. You know it. मैं इनको लिखूंगा नहीं. You cannot use the firm name. You cannot solicit the old customers. You cannot represent himself to be carrying on the business. These are the 3 restrictions. But these restrictions can also be done away by entering into a contract. So this is the one branch. Now this gentleman D can agree with the ABC that he will not, ये जो right है, he is waiving this right. He will not carry on the business of similar nature. यानी कि ये right ये waive कर रहा है हमेशा ये. लेकिन इस कंडीशन में 2 बातें हैं. लोकल लिमिट्स, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो लिमिट रेस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं? स्पेसिफाइड पीरियड एंड सेकंड रेस्ट्रिक्शन इज व्हाट? लिमिट्स, लोकल लिमिट्स यानी कि टेरिटोरियल लिमिट्स. ये 2 जो लिमिट्स हैं स्पेसिफाइड पीरियड की और लोकल लिमिट्स की, ये रेस्ट्रिक्शंस कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए. प्लीज लेट मी नो. सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट. राइट है बट you can enter to the contrary. You can agree that I will not carry on the business within the specified time. कि मैं कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक ये काम नहीं करूंगा, कुछ एरिया में नहीं करूंगा. लेकिन अगर जैसे ही वो जो लिमिट्स हैं स्पेसिफाइड टाइम की, लिमिट्स हैं ये वाली लोकल लिमिट्स की, अगर ये अनरीजनेबल हुई तो फिर आपकी जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो वॉइड होती हैं, एंटायर एग्रीमेंट वॉइड नहीं होता. अब ये रीजनेबल कैसे चलेगा पता? सपोज फॉर एग्जांपल वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर. जैसे फॉर एग्जांपल कि कोचिंग से लेते हैं, उससे रिलेट कर सकते हो आप. अगर कोई कोचिंग ऐसी है कि भाई वो 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं क्लास तक के ट्यूशन को पढ़ाते थे आप लोग पार्टनरशिप में, तो आप ये कह सकते हैं ठीक है भाई इस मोहल्ले में नहीं पढ़ाओगे, वो एक लोकल लिमिट्स रीजनेबल हो सकती है. आपको पूरी दिल्ली में नहीं पढ़ाओगे, दैट बिकम्स अनरीजनेबल. अब एक उससे बड़ी कोचिंग कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो एक दिल्ली में अपने आप एक नाम है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए. तो आप ये कह सकते हैं कि भाई लोकल लिमिट्स के केस में ठीक है आप दिल्ली में नहीं करोगे या एनसीआर रीजन में नहीं करोगे, जहां जहां हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल कहलाएंगे आपके लिए वो. लेकिन अगर आप ऐसी कोचिंग के लिए कहेंगे कि आप इंडिया में, मुंबई में कहीं पर भी जाकर के विजेंद्र वर्मा कोचिंग नहीं कर चला सकते, तो दैट विल बी अनरीजनेबल. अब क्या हुआ? एक ऑनलाइन सेटअप आ गया जिसकी रीच वाइड रीच हो गई. अब जैसे फॉर एग्जांपल कि विधि की रीच मैक्सिमम हिंदी स्टेट्स में तो है ही है ना. तो अब कोई कहे कि भाई आप तमिलनाडु में जाकर के भी शुरू नहीं कर सकते हैं, जहां पर आपकी रीच मिनिमम है, या बहुत रिमोट एरियाज कहीं भी नहीं कर सकते हैं आप, तो जो लोकल लिमिट्स, जो आपकी जो लोकल लिमिट्स से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस है वो अनरीजनेबल हो जाती है. तो रीजनेबल क्या होगा? ये जो शब्द दिया हुआ है रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज आर रीजनेबल, ये रीजनेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि कितना एक्सपर्टाइज चाहिए था उसमें. मान लीजिए कोई साइंटिफिक पेटेंट कराया था आपने, तो उसकी वैल्यू अलग होगी, उसकी टाइम लिमिट होगी फिर स्पेसिफाइड की 15-20 साल तक, जब तक इसमें इन्वेस्टमेंट करे हुए नहीं निकल जाते हैं आप इसको यूज नहीं करोगे आप इसको, ऐसा भी हो सकता है. तो जो रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू पीरियड है, टाइम पीरियड, रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू द लोकल टेरिटोरियल लिमिट्स के लिए है. इफ दोज आर रीजनेबल, अगर वो लिमिट्स रीजनेबल हैं, अगर वो रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं, इन दैट केस
you can enter into even the restrictive agreements. आप restrictive agreement को भी कर सकते हैं, सेक्शन 36 क्लॉज 2 परमिट करता है, भले ही आपको सेक्शन 27 परमिट नहीं करता हो। तो दिस इज 36। अब मुझे बताइए किसको कौन सी बात समझ में नहीं आई, चलिए जल्दी बताइए। अक्षिता मैडम, मैंने काफी रिपीट किया आपको समझाने के लिए, आई इसीलिए कि ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है जी, अंशप्रिया गुड। ज्योति नहीं आ रही है इसमें, ज्योति नहीं है, पल्लवी नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं हैं। चलिए now I come to the second part. This we have been dealing with the rights of the outgoing partner, and when a partner ceases to be a partner, generally these are the two kinds of questions, two kinds of rights. Number one, rights to carry on the competing business, ये हम कर चुके हैं 36 में. Now we will start the right to share the subsequent profits, 37 ये हम लोगों ने करना है, and for that we will have to go to section 37. Right of the outgoing partners in certain cases to share subsequent profit. Please note down. First of all, you can see the question from the heading itself. So this is the question for your prelims. This is the question for your prelims as well. Right of outgoing partner in certain cases. ठीक, क्या है पढ़िए. Where any member of a firm has died or otherwise ceased to be a partner. तो बेसिकली दो बातें हैं, ध्यान रखना. दिस इज द सिचुएशन वेयर ए मेंबर ऑफ द फर्म हैज डाइड, यानी कि डेथ का हो गया, और अदरवाइज सीज टू बी ए पार्टनर, एंड यू नो हाउ कैन ही सीज टू बी, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, है ना, किसी भी तरीके से. नाउ यू कैन से ही इज आउटगोइंग पार्टनर. ठीक, तो दिस इज द सिचुएशन. वन पर्सन हैज सीज्ड टू बी a member of this, and the surviving or continuing partners carry on the firm with the property of the firm without any final settlement of the accounts. तो दिस इज द सिचुएशन. इसको ब्रेक करके मैंने आपको दिखाया बोर्ड पर, अब इसको समझिए. नंबर वन, this section is dealing with a situation when a person ceases to be a partner. जब कोई व्यक्ति अब पार्टनर नहीं रहता है, whether he has died, या तो उसकी मृत्यु हो गई है, otherwise he has taken retirement himself, or he has been expelled, or he has been declared insolvent. In any ways he is no more the partner. Number one. ठीक, for example A, B, C, D, and D is no more the partner. Now what is the second situation here, that surviving partners or continuing partners, they have not settled the accounts with him. तो जो D के साथ है A, B, C continuing partners, D is the outgoing partners, उनके बीच में अभी तक कोई सेटलमेंट ऑफ अकाउंट नहीं मिला है, हुआ है. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का मतलब यह है कि जो शेयर था उसको दिया नहीं गया है, उसको अभी बंटवारा नहीं हुआ है, एंड दे आर कंटिन्यूइंग द बिजनेस, दे कैरी ऑन द बिजनेस. जो ABC हैं, दे कंटिन्यू द बिजनेस विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म.
एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स व्हाट? दे आर स्टिल यूजिंग द share of the D as well. So see the board. Earlier they were A, B, C, D, property of A, B, C, D, which was being used to carry on the business. Now D has gone, but still property of shares of A, B, C, D are being utilized to carry on the business of the firm. So this is the situation. So one person leaves the firm, either death or by the other reasons, other ways. Now he is no more the partner, but his share is being used in the property, in carrying on the business of the firm, because accounts are not settled, continuing partners are carrying on the business. तो दिस इज द सिचुएशन. तो प्लीज लेट मी नो कि इतना समझ में आया नहीं आया आपको, कि ये सिचुएशन समझ में आया नहीं आई. देन वी विल से व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इन सच सर्कमस्टेंसेस. कम ऑन. Then in the absence of the contract to the contrary, in the absence of contract to the contrary, the outgoing partner or his estate is entitled at the option of himself or his representative to such share of the profits made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to the interest at the rate of 6% per annum on the amount of his share. तो क्या कह डाला, इसको मैं ऐसे समझाता हूं समरी के रूप में. पहले इसको समझिए केवल कि कौन कौन से राइट्स हैं आउटगोइंग पार्टनर्स के. आउटगोइंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स और टू द इंटरेस्ट एट हिज ऑप्शंस. तो इन्होंने ये कहते हैं 37 क्लॉज टू ये कहती है, 37 क्लॉज टू ये कहती है कि जनाब आली, इफ यू आर आउटगोइंग पार्टनर, if you are outgoing partner, then you have option number 1, you are entitled to such share of the profits. जो profits हुए हैं आप उसमें अपना शेयर ले सकते हैं as per your share. नंबर सेकेंड ऑप्शन, you can take the interest on your amount. जो आपका शेयर था, जो अनसेटल्ड पैसा रह गया फर्म पर, तो यू कैन क्लेम द इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझे? तो बेसिकली दो राइट्स हैं आपके पास, या तो इंटरेस्ट ले लीजिए या अपना प्रॉफिट में हिस्सा ले लीजिए. बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इसको टेक्निकली पढ़ते हैं अभी. इस बैकग्राउंड को अपने दिमाग में रख करके कि दो राइट्स हैं उसके पास, प्रॉफिट ले सकता है या वो ब्याज ले सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है ना. इसको ध्यान में रखते हुए दो बातें हैं. क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़िए. देन देखिए, पहली बात, इन द एब्सेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, हम बाद में समझेंगे. अगेन द आउटगोइंग पार्टनर, ठीक, आउटगोइंग पार्टनर, देखिए लाइन को पढ़िए ढंग से, कौन कौन से आउटगोइंग पार्टनर, इट मींस ही हिमसेल्फ, जो पार्टनर गया है डी, और हिज एस्टेट. दिस विल बी एप्लीकेबल व्हेन डी डाइड. अगर जिंदा है तो खुद सामने आएगा. हिज एस्टेट एंड डाइड एंड कोई रिप्रेजेंटेटिव ना हो, एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि ऑप्शन पे ध्यान दो, एट द ऑप्शन मीन चॉइस है. तो आउटगोइंग पार्टनर हो या उसकी जो संपदा छूट गई है, उस वो किसके लिए अधिकारी होगी, एंटाइटल्ड होगी, किसके लिए? टू सच शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स कौन से? प्रॉफिट्स मेड, बोर्ड देखो,
प्रॉफिट्स मेड सिंस ही सीज टू द पार्टनर्स, जिस दिन से वो पार्टनर नहीं रहा उस दिन से जो प्रॉफिट्स हुए उनको हम बोलेंगे प्रॉफिट्स मेड सिंस ही सीज टू बी पार्टनर। एक जिस डेट को सपोज कीजिए 25 जुलाई को, वो 25 जुलाई 21 को पार्टनर नहीं रहा, ही इज नो मोर पार्टनर फ्रॉम दिस डेट, तो इस डेट से लेकर के जो बाद में ये प्रॉफिट्स होंगे उसमें हिस्सेदारी का वो अधिकारी होगा। ही शैल बी एंटाइटल्ड हु he is the outgoing partner and or his estate shall be entitled to share in the profits। अब इन्होंने शब्द यूज करा है एट द ऑप्शन ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। ऑप्शन ऑफ आउटगोइंग पार्टनर मतलब जो पार्टनर बाहर जा रहा है उसकी अपनी इच्छा पर, और अगर ही इज नो मोर तो फिर उसके विधिक उत्तराधिकारी की इच्छा पर। तो वो चाहे तो यानी कि चॉइस हो गई, he can opt for the profits in share, and secondly or to the interest, or the interest किस पर, ब्याज पर। ब्याज किस पर, on the amount of his share, उसके जो शेयर है उसकी जो वैल्यू है उस पर वो इंटरेस्ट ले सकता है। तो यू विल सी he has two options, number one he can opt for the share in the profits, number two he can opt for the interest on that amount। Now the question will come again, that can be a question your prelims as well, that what shall be the percentage of interest rate। So IPA itself prescribes what, this shall be at the rate of 6% per annum। तो रेट इज फिक्स 6% पर एनम, यहीं पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो दो राइट्स हो गए, शेयर इन द प्रॉफिट्स, नंबर वन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये आपकी चॉइस है। चॉइस किसकी है, आउटगोइंग पार्टनर है। अगर खुद मर गया हो तो किसकी चॉइस होगी, फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की चॉइस होगी वो। सही है। और किस शेयर पे मिलेगा, एज मे बी। शेयर कौन सा है, इसके लिए ये रहा फ्रेज, देखो बोर्ड पे, as may be attributable to the use of his share of the property firm। कि जो उसके शेयर, उसका जो शेयर है फर्म में, उसके शेयर के यूज से जो प्रॉफिट हुआ होगा वो प्रॉफिट का वो ऑप्शन ले सकता है कि दैट प्रॉफिट शुड बी गिवन टू मी, एंड इफ ही डजंट वांट दैट तो ही कैन आल्सो क्लेम द इंटरेस्ट। तो प्लीज लेट मी नो, ये लाइन पढ़ गया। Then in the absence of the contract to the contrary, then in the absence of contract to the contrary, he is, this is what is again this see, कहते हैं जो मिट्टी है ना, मिट्टी से निकला है मिट्टी में मिल जाएगा, कहाना कसमे वादे प्यार वफा, ऐसी लाइनें है ना गाने की, फिल्म थी एक। तो जिससे निकला है वही सेट को गवर्न करता है सब कुछ, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट। तो यू विल सी कि एवरीवेयर कॉन्ट्रैक्ट इज ड्राइविंग ऑल द राइट्स, ऑब्लिगेशंस, सब्सिक्वेंट राइट्स, प्रीवियस राइट्स एवरीवेयर। Similarly again here, you are given right by 37, outgoing partner has two rights with regard to the unsettled accounts, share in profit, 6% per annum interest। But again you will see the beautiful line that in the absence of the contract to the contrary, it means if there is a contract to the contrary, it means they can agree, outgoing partners and continuing partner can agree to the contrary, कि वो ये समझ सकते हैं कि भाई इस बारे में हम लोग क्या करेंगे अब, कि वेदर दिस आई विल टेक द शेयर 50%, मेरा शेयर भले प्रॉपर्टी आप यूज करो लेकिन उसका कम दो, ज्यादा देना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स में लूंगा नहीं लूंगा, इस बारे में बात कर सकते हैं, कितना लूंगा कितना नहीं लूंगा, ऐसे इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं वो। तो अगेन दिस इज ए स्टैट्यूटरी राइट बट इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। जो बातें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं वही रूल यहाँ अप्लाई होगा।
तो they can agree to the contrary of these provisions. They may take share, they may not take share, they may increase share, decrease share, whatever, that will depend upon the contract. In the absence of the contract, these two rights will prevail over it. Provision बढ़ाइए, very interesting. Provided that whereby a contract किसके बीच में, between the partners, an option is given to the surviving or continuing partners to purchase the interest of the deceased or outgoing partner. क्या मतलब हुआ? An option is given to the surviving or continuing partners. कॉन्ट्रैक्ट में ही आपके जो पार्टनरशिप डीड है, दैट वाज मेंशन्ड देन व्हेनेवर ए पार्टनर सीजेस टू बी ए पार्टनर, देन द कंटिन्यूइंग पार्टनर विल हैव ऑप्शन कि दे कैन परचेज दैट. ठीक है, ऑप्शन इज गिवन टू सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. इट मींस व्हाट, 20% शेयर अगर छोड़ के जा रहा है वो, नाउ यू कैन बाई दैट. इंडिविजुअली बाई कर सकता है. ए बी सी डी के अगर हैं, ए बी सी डी है, डी इज गोइंग, B is saying that I take his share, I am purchasing his share. तो ये ऑप्शन दिया गया हो उसको अगर कि ठीक है आप लोग, कोई पार्टनर जाएगा तो दूसरे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उसके शेयर को परचेज कर सकते हैं. परचेज दिस, प्लीज रीड इट अगेन. whereby a contract an option is given to purchase the interest of the deceased partner. एन ऑप्शन, आप ऐसे पढ़िए इसको, ऐसे ये, एन ऑप्शन इज गिवन टू परचेज द इंटरेस्ट ऑफ ए डिसीज और आउटगोइंग पार्टनर. जो व्यक्ति, जो मृत पार्टनर है, भागीदार है, या जो वापिस जो बाहर जा रहा है, उसके शेयर को, उसके हितों को, उसके इंटरेस्ट को परचेज करने का प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक, कॉन्ट्रैक्ट में. और दैट ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज. इट मींस दैट ऑप्शन, यस वी आर परचेजिंग दिस, that option is duly exercised, then the estate of the deceased partner or the outgoing partner or his estate, as the case may be, is not entitled to any further or other share of profits. बस इतनी सी बात है कि अगर वो शेयर परचेजिंग का प्रोविजन था और वो एक्सरसाइज हो गया, इट मीन्स योर शेयर हैज बीन purchased by the continuing partners, then you are no more, you cannot say, you are not entitled to the above mentioned right. कैसे? जो राइट्स आपके शेयर प्रॉफिट्स थे वो आपके खत्म हो जाएंगे बहुत नेचुरली. केवल आपको पढ़वाना है केवल ये इन सच सिचुएशन. वो समझाने वाली बात है नहीं, लेकिन एक बार जानना भी जरूरी है कि ये भी सिचुएशन हो सकती है कि जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है उसी में लिखा हो कि आउटगोइंग पार्टनर का जो शेयर होगा दैट कैन बी परचेज्ड एंड दैट ऑप्शन इज एक्सरसाइज, मतलब दैट इज नाउ परचेज्ड. तो बट नेचुरल है कि नाउ द डिसीज पार्टनर जो हुआ, या जो अदर पार्ट, जो आउटगोइंग पार्टनर है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी फर्दर शेयर इन प्रॉफिट्स. उसको प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे आप. बट इफ एनी पार्टनर एज्यूमिंग टू एक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, if any partner, कौन सा पार्टनर? if any partner assuming to act in exercise of the option does not comply in all material respects with the terms thereof, then ऐसा पढ़ना, he is liable to account under the foregoing provisions of this section. देखिए इंटरप्रिटेशन कैसे होगी. 3 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया सेक्शन को. कौन सा पार्टनर है ये? एनी पार्टनर एज्यूमिंग टू एक्ट इन एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन. हम उस पार्टनर की बात कर रहे हैं जो ए बी सी डी आउटगोइंग था, एंड नाउ दिस सी जेंटलमैन वाज सेइंग दैट आई विल परचेज द शेयर ऑफ द आउटगोइंग डी. डी का जो हिस्सा है वो मैं खरीदूंगा. So now he is the person, you see the board, D is the partner who is assuming to act in exercise of the option. Option कौन सा? Option of purchase. Option of purchasing the
शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। ये वो व्यक्ति है डी, he was who was taking, who was saying I will purchase, I am exercising this option, I will purchase his share. So he is assuming to exercise the option. लेकिन ही क्या करते हैं भाई साहब ने, बाहुबली तो बन गए, 50 लाख का उसका शेयर था, अब आपसे वो पैसा दिया नहीं जा रहा। नेक्स्ट लाइन, डज नॉट कंप्लाई, दिस पार्टनर जिसकी हम बात आइडेंटिफाई कर चुके हैं, ही डज नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स देयर ऑफ इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स। ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट था परचेजिंग का वो उसकी कंडीशन से अब इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट कंप्लाई नहीं करता है। इट मीन्स इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट का मतलब है कि 50 लाख का शेयर था, 40-45 लाख भी नहीं दिया, मैक्सिमम पार्ट्स का नहीं किया उसने, इससे मतलब है। then what will be the consequence? In that case he is liable to account। देखो यहां ध्यान रखना, ये टेक्निकल बात समझा रहा हूं, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है। he is liable under the foregoing provisions of this section। अब लाइबल क्या होगा यहां पर, ये क्या है कि ये शब्द क्या है, देखो शब्द देखो बोर्ड पे देखो, who is liable, he is liable। who is he is that partner, who is this partner who was assuming to act in exercise of the option of purchasing the share। he पे क्यों स्ट्रेस है, not all continuing partners, केवल वही बाहुबली रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने कि ये एज्यूम किया था कि यस who was taking on the responsibility of purchasing that share। समझे? तो पहली बात तो ये, he is liable to account, not the continuing firm। please see again 37 को आप दोबारा पढ़िए जनाबे आली, बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। where any member of the firm died or otherwise ceased to be the member, it means he is now outgoing partner and the continuing partners carry on the business, ठीक है, without settlement, then outgoing partner is entitled to share of profits। so in that case अगर आउटगोइंग पार्टनर के अकाउंट को, अभी हमने यही पढ़ा था 37 क्लॉज 1 में, आउटगोइंग पार्टनर का जो शेयर अगर अनसेटल्ड रह जाता है एंड यू कंटिन्यू टू यूज दैट शेयर इन द प्रॉपर्टी, देन यू विल हैव टू गिव हिम द शेयर इन प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। तो ये एज ए पूरी फर्म की लायबिलिटी थी। 37 क्लॉज 1 में पूरी फर्म की लायबिलिटी थी, लेकिन इन बिटवीन कौन कूद गए बीच में, बाहुबली ने क्या कहा कि आई विल एक्सरसाइज दैट ऑप्शन एंड ही कुड नॉट डू दैट। तो इन दैट केस दैट बाहुबली पार्टनर विल बी लायबल अंडर द फोरगोइंग, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रति लायबिलिटी है या शेयर्स इन प्रॉफिट के प्रति लायबिलिटी है, अब एंटायर फर्म की नहीं हुई है, उसी बाहुबली पार्टनर की होगी, हु वाज सेइंग कि आई एम एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग द शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। तो दिस इज टेक्निकल। इन दैट केस इफ he could not do that, if he does not comply in all material respects, who bahubali partner, then he himself will be liable under the foregoing provision। का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है अंडर द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन का मतलब हुआ कि लायबिलिटी ऊपर जो हमने पढ़ी है पहले, इससे पहले के प्रोविजंस में, शेयर इन प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट के प्रति जो लायबिलिटी होगी वो सभी उस बाहुबली पार्टनर की होगी। तो आई बिलीव अब आपको ये टेक्निकल पॉइंट भी समझ में आ गया होगा इसमें। तो प्लीज लेट मी नो
ये आपको समझ में आया नहीं आया? कम ऑन। 37 talks about two kinds of partners. First is what? Who has died. Dead or ye. Come when what is the situation when he becomes entitled to such rights? When he becomes entitled to such rights? When his accounts are not settled. When his accounts are not settled. ध्यान रखना। सो दिस इज एक केस है, देख लीजिए, इस केस को देख लेते हैं। पीवी रेडी, पीवी ये मेरे रेडी होगा, रेडी की जगह सही कर लीजिएगा उसको, रेडी होगा ये पीवी रेडी वर्सेस सीसी रेडी। इसको हम लोग देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, मेंशनिंग कर दीजिए कई बार आता है तो आपके इसमें, बहुत मुश्किल नहीं है। इन ऑफ केस plaintiff had retired from the firm on 5/4/97. This is the date of retirement, 5 अप्रैल, after selling his share in the partnership firm. सेल कर दिया इसने। The High Court directed the appointment of inquiry into the valuation of his share. It was held that share of the retired was to be valued as on the date on he retired. तो इसमें सिर्फ ये बात की गई थी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने अपने शेयर को सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था। अब उसके वैल्यूएशन के बारे में बात आई थी कि वैल्यूएशन जब कि मेरा अकाउंट नहीं दिए गए हैं तो उसकी वैल्यू निकाली गई। तो हाई कोर्ट ने कहा था इस मैटर की उसकी जो वैल्यू होगी कि उसके हिसाब से देखी जाएगी जिस डेट पर उसको रिटायरमेंट हुआ है। हालांकि देखो, मैं ये आप पीवी रेड्डी, के एस राव को इनको छोड़ भी देंगे, मैंने आपको नोट्स में दे दिया है। बेटर यू लीव देम, दीज आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में देखिए तो मैंने मेंशन कर दिया नोट्स में भी, जिसका टाइम है वो देख लीजिएगा। बट यू कैन लीव इट, परफेक्टली यू कैन लीव इट, आपका इसके ना काम चल जाएगा बड़े आराम से। छोड़िए बेकार कन्फ्यूजन होना, फालतू चीज़ें दिमाग में उठाने की जरूरत भी नहीं है आपको। इट इज़ मोर देन सफिशियंट। तो 37 इज ओवर फ्रॉम माई साइड एंड नाउ देर इज सेक्शन 38, नोट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड दैट्स योर होमवर्क। अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत आए, उसको केवल हेडिंग भी देख लेंगे तब भी पर्याप्त है, अदरवाइज यू कैन लीव इट सेफली। तो ये चैप्टर आउटगोइंग पार्टनर्स का, इनकमिंग पार्टनर्स एंड आउटगोइंग पार्टनर्स का यहाँ पर मेरी तरफ से समाप्त होता है ना। नाउ वी विल डील विद द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब बहुत ज़्यादा रह नहीं गया, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म करेंगे हम लोग। 4-5 सेक्शन हैं कैसे कैसे फर्म डिसोल्व हो सकती है, और उसके बाद में सीधा हम जाएंगे सेक्शन 69 पे क्या है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में पढ़ेंगे 72। तो एक क्लास या 2 क्लास हो गई आपकी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पर, और एक क्लास आपकी हो जाएगी 69 पर। तो ये 3 क्लास में मैक्सिमम आपकी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। इस हफ्ते पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। सो कैसे लगी क्लास आपको, सही बताइए। अगर आपको वाकई में लगता है कि आपके साथ जस्टिस किया गया है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप हमारे चैनल पर आए थे, आपने क्लास की थी, आपको क्लास पसंद भी आई थी और आप चले गए? नहीं चलेगा ना पता, तो आप प्लीज़ लीव योर कमेंट। एक तो ये कीजिए, दूसरा अपने दोस्तों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको ढंग से उसको देखना होगा कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या तो हो चुकी होंगी या फिर हम लोग उसको डेली अपडेट कर ही रहे हैं। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए vidhijudical.com, और इसी के साथ में हमारा जो ऐप है विधि जुडिशल एकेडमी, उसको गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर बहुत सारे प्रो कोर्सेज मिलेंगे जिनकी आपको बहुत मदद होगी। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा ही रहे हैं, और हमारे ऐप पर भी हम लोगों ने कोई बहुत ऐसी फीस नहीं रखी है जो आप किसी की भी पॉकेट से बाहर जाए, केवल कॉस्ट टू कॉस्ट मेंटेनेंस वाले हैं। वहाँ पर भी ऑलमोस्ट फ्री ही है कोर्सेज। लाइव क्लासेस का कोर्स अलग से है, वीडियो रिकॉर्डेड का कोर्स अलग से है, टेस्ट सीरीज अलग से हैं। तो आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एक बार, क्या आपके काम का है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।